بسم الله الرحمن الرحيم. أما التصديق فهو على قول الحكماء عبارة عن الحكم المقابل للتصورات، فالتصورات الثلاثة شرط لوجود التصديق، ومن ثم لا يوجد تصديق بلا تصور. والإمام الرازي يقول إنه عبارة عن مجموع الحكم وتصورات الأطراف. فإذا قلت زيد قائم وأذعنت بقيام زيد تحصل لك علوم ثلاثة: أحدها علم زيد، وثانيها إدراك معنى قائم، وثالثها علم المعنى الرابط. الرابط یہ صفت ہے معنی کی. علم المعنى الرابط الذي يعبر عنه في الفارسية بحسب في الإيجاب ونيست في السلب وهي ونهي في الهندية. ويقال لهذا المعنى الحكم تارة والنسبة الحكمية أخرى. فإذا أتقنت ما علمناك فاعلم أن الحكيم يزعم أن التصديق ليس إلا إدراك المعنى الرابط، والإمام يزعم أن التصديق ليس إلا إدراك المعنى الرابط، والإمام يزعم أن التصديق مجموع الإدراكات الثلاثة، أعني تصور المحكوم عليه، تصور المحكوم به، وإدراك النسبة الحكمية المسمى بالحكم. علم کی دو قسمیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے. ایک بیان کی ہے تصور اور دوسری بیان کی ہے تصدیق. تصور کی تعریف مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اوپر بیان کی ہے کہ تصور کس کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں تصور؟ کیا تعریف کی ہے؟ فهو الادراک الخالی عن الحکم. تصور وہ علم ہے، وہ ادراک ہے جو حکم سے خالی، یعنی جس کے اندر حکم نہ پائے جائے. اور تصدیق جو ہے وہ اس کے مقابل میں ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ تصدیق وہ ادراک ہوگا جس کے اندر حکم پایا جائے. تصدیق وہ ادراک ہے جس کے اندر حکم پایا جائے. اما التصدیق، بہرحال تصدیق فہو علی قول الحکماء، وہ حکماء کے قول کے مطابق عبارت نام ہے عن الحکم، اس حکم کا المقارن، یہ صفت ہے الحکم کی جو ملا ہوا للتصورات، تصورات سے. اس سے تصورات سے. اما التصدیق، بہرحال تصدیق فہو علی قول الحکماء، وہ حکماء کے قول کے مطابق عبارت نام ہے عن الحکم، اس حکم کا المقارن للتصورات، جو ملا ہوا ہو تصورات سے. یہ جو بحث چھیڑی ہے مصنف نے، آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ تصدیق کی تعریف کر رہے ہیں. جیسے کہ معلوم بھی ہو رہا ہے، لیکن یہ تصدیق کی تعریف نہیں کر رہے ہیں. مصنف نے اصل جو یہاں پر بحث چھیڑی ہے وہ تعریف کی نہیں چھیڑی. اصل بحث مصنف نے چھیڑی ہے تصدیق کے بارے میں ایک اختلاف. تصدیق کے بارے میں اختلاف کی بحث چھیڑی ہے. تصدیق کی جو تعریف ہے وہ میں نے تمہیں بتائی کہ تصور کہتے ہیں وہ علم یا وہ ادراک جو حکم سے خالی ہو. تو اس کے مقابلے میں تصدیق ہے، لہذا تصدیق کہیں گے اس ادراک کو جس کے اندر حکم ہو، یا وہ ادراک جو حکم سے خالی نہ ہو. کیا ہے؟ تصدیق ہے. جیسے میں نے بتایا تھا زید قائم، کیا ہے؟ زید قائم. زید کا آپ نے الگ تصور کیا، قائم کا الگ کیا، دونوں کو ملایا نہیں تو یہ تصور ہے. اور دونوں کو ملا دیں آپ، ملا کر کے کہیں زید قائم، زید قائم ہے، تو یہی کیا ہے؟ تصدیق. آگے بات سنیں میں. یہاں جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ بات کر رہے ہیں، تصدیق کی تعریف تو کی ہے، لیکن اصل جو بحث چھیڑی ہے مصنف نے وہ یہ چھیڑی ہے کہ تصدیق کے سلسلے میں اختلاف ہے. تصدیق کی حقیقت کیا ہے؟
तस्दीक की हकीकत और माहियत क्या है, किसको तस्दीक कहेंगे, तस्दीक किसको कहेंगे। आगे बात समझ में। इसको समझने से पहले एक चीज और समझें। मैंने बताया ज़ैदुन का अलग तसव्वुर करें आप, काइम का अलग तसव्वुर करें, तो ये है तसव्वुर। ये क्या है, तसव्वुर है। दोनों को मिला दें तो ये है तस्दीक, दोनों को मिला दें तो क्या है, तस्दीक है। ठीक है, ज़ैदुन काइम की क्या हो गई, तस्दीक। अब आप एक चीज समझिए, यहाँ पर ज़ैदुन ये एक अलग लफ्ज़ है, ठीक है, काइम ये अलग लफ्ज़ है। जब आप बोलते हैं ज़ैदुन काइम, जब आप क्या बोले, ज़ैदुन काइम बोलते हैं, ज़ैद खड़ा है, ज़ैद खड़ा है, आपने क़याम को ज़ैद के लिए साबित कर दिया, क़याम को ज़ैद के लिए साबित किया। तो यहाँ पर आप गौर करेंगे कई सारी चीजें आपको हासिल होती है। मिसाल के तौर पर ज़ैदुन काइम में एक तो चीज आपको हासिल हुई, ज़ैद का इल्म, ज़ैद का इल्म हासिल हुआ आपको। भाई ज़ैद को आपको अगर ज़ैद के बारे में कोई इल्म ही नहीं है तो आप ज़ैदुन काइम बोलेंगे कैसे। जिस चीज के बारे में आपको इल्म होगा उस चीज के बारे में तो आप बताएंगे वो खड़ी है, बैठी है, क्या है। हरी बात सुन में। तो ज़ैद का इल्म हुआ। दूसरे क्या हुआ, काइम के माना, दूसरा इल्म हुआ आपको काइम के माना। काइम के माना खड़ा होना। तो ज़ैदुन काइम का आपने जब बोला ज़ैद खड़ा है, ज़ैद खड़ा है, तो एक तो ज़ैद का इल्म आपको हो गया, दूसरे क्या हुआ, काइम का, दूसरे काइम का इल्म हुआ। तीसरा ये कि आपने क़याम को साबित किया है ज़ैद के लिए, क़याम को साबित किया है किसके लिए, ज़ैद के लिए, है ना। तो ये जो राबता, ये जो राबता है, आपने जो कनेक्शन किया है ज़ैद का क़याम के साथ, ज़ैद का क़याम के साथ जो कनेक्शन किया आपने, इस कनेक्शन के बारे में इल्म हुआ, इस कनेक्शन के बारे में आपको इल्म हुआ। आगे बात समझ में। इसी कनेक्शन का नाम है हस या नेस, हस्त या नेस, या है या नहीं। ज़ैदुन काइम का तर्जुमा क्या करते हैं, ज़ैद खड़ा है, ज़ैद खड़ा है। तो क़याम का जो कनेक्शन और जो ताल्लुक आपने कायम किया है ज़ैद के साथ, उसको तामील किससे करते हैं आप, है। ज़ैद खड़ा है या ज़ैद खड़ा नहीं है। फारसी में उसी को आपने पढ़ा होगा, हस्त और नेस, हस्त और नेस, या अस्त, हस्त भी बोलते हैं, कहीं अस्त बोला है। नबी वसल्लम फरमुदा अस्त, आका वसल्लम ने फरमाया है, आका वसल्लम ने फरमाया है, पढ़ा ना। तो फारसी में उसी को हस्त या नेस कह देते हैं, उर्दू में उसी को है और नहीं से ताबीर कर देते हैं। अरबी के अंदर इसके लिए हुआ लफ्ज़ लेकर के आते हैं, क्या आते हैं, हुआ। अरे बात समझ में। तीन चीजें हो गई, कितनी हो गई है, तीन चीजें हो गई। तो ज़ैद का इल्म हुआ, क़याम का इल्म हुआ, किसका, क़याम का इल्म हुआ, और उस राबते के माना का आपको इल्म हो गया जिसको हस्त और नेस्त से ताबीर करते या है और नहीं से ताबीर करते। तो इतनी चीजें जो है आपको किससे मालूम हुई, तस्दीक से। किससे, तस्दीक से। अब मसला सुनिएगा आप, मसला ये है कि तस्दीक कहते किस चीज को, तस्दीक कहते किस चीज को। क्या इन सारी चीजों को मिला करके तस्दीक कहेंगे, इन सारी चीजों को मिला करके तस्दीक कहेंगे, या किसी और चीज का नाम तस्दीक है। तो इस सिलसिले में हुकामा है और इमाम राजी, हुकामा है और इमाम राजी, इन दोनों का इख्तिलाफ है। हुकामा का, हुकामा यानी बहुत सारे, कुछ लोग हैं एक तरफ और एक तरफ है इमाम राजी जो मंतिक के बड़े इमाम हैं, मंतिक के बड़े इमाम हैं वो। तो इन दोनों का इख्तिलाफ हुआ, इन दोनों का इख्तिलाफ हुआ। हुकामा जो है वो ये कहते हैं कि तसव्वुराते सलासा जो है, तसव्वुराते सलासा यानी ज़ैद का तसव्वुर, काइम का तसव्वुर और निस्बत का तसव्वुर, ये जो तसव्वुराते सलासा हैं, इनके मजमूए को कहेंगे तस्दीक। इनके मजमूए को क्या कहेंगे, तस्दीक। यानी सबको मिला करके इनको, ज़ैद के तसव्वुर को हमने मिलाया, क़याम के तसव्वुर को मिलाया, फिर निस्बत का जो तसव्वुर था उसको मिलाया, इन तीनों को मिलाकर का क्या बना, एक माजूम बना ली हमने। क्या बना ली, एक माजूम। तो उस माजूम का नाम तस्दीक है, उस माजूम का नाम तस्दीक है। अगली बात समझिए, ये कौन कहते हैं, हुकामा। कौन कहते हैं, हुकामा। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि बिल्कुल गलत, तस्दीक नाम है हुक्म का, तस्दीक नाम है हुक्म का। तस्दीक की मैंने तारीफ क्या की, तस्दीक वो इदराक जिसमें हुक्म पाया जाए, जिसमें हुक्म पाया जाए। तो इमाम राज़ी कहते हैं तस्दीक
नाम है हुक्म का। बस ज़ैदुन क़ाइमुन में जो क़याम साबित हो रहा है ज़ैद के लिए, जो क़याम साबित हो रहा है ज़ैद के लिए, तो इस क़याम का सबूत, इस क़याम का सबूत ये हुक्म है। ये क्या है? हुक्म है और यही तस्दीक है। बस यही तस्दीक है। रहा ज़ैद का तसव्वुर या क़याम का तसव्वुर या निस्बत का तसव्वुर या निस्बत का तसव्वुर, तो इमाम साहब कहते हैं, इमाम राज़ी, कि ये शर्त है। ये क्या है? शर्त है इसके लिए, इसके जुज़ नहीं है। तस्दीक के ये जुज़ नहीं है, शर्त है। शर्त का मसला आप जानते हो, अभी तुम्हारा जहन नहीं जा रहा उधर, लेकिन जहन दौड़ाओगे तो पता लग जाएगा। शर्त जो होती है किसी भी चीज़ से खारिज होती है, दाखिल नहीं होती। शर्त खारिज होती है चीज़ से, चीज़ के अंदर दाखिल नहीं होती। गया जहन कहीं? नमाज में मिसाल के तौर पर, नमाज की शराइत में से क्या है? कपड़े का पाक होना, बदन का पाक होना और जगह का पाक होना, ये सारी चीजें नमाज की शराइत है। नमाज के अंदर है, नमाज से बाहर है? बाहर है ना। और नमाज के रुक्न क्या है? नमाज के रुक्न, अरकान जो है नमाज के फराइज क्या क्या है? क़याम का क़याम, रुकू है, सजदा है, कुनूद है, तो ये क्या है नमाज के? ये अरकान है। ये नमाज के अंदर दाखिल है, खारिज है? ये दाखिल है। आगे बात सुनिए। तो एक होता है शर्त, एक होता है शत्र, एक होता है शत्र। शत्र के माना है जुज़, शत्र के माना है जुज़। तो इमाम राज़ी ये कहते हैं कि ये तीनों तसव्वुरात हैं, महकूम अलैह का तसव्वुर ज़ैद का, महकूम बिही का तसव्वुर क़याम का, और निस्बत का तसव्वुर, और निस्बत का तसव्वुर, ये जो तीनों चीजें हैं ये शर्त है तस्दीक की। तस्दीक क्या है? शर्त है। वो ये कहते हैं कि तस्दीक नाम है हुक्म का, तस्दीक नाम है हुक्म का, और तसव्वुरात सलासा उसके लिए शर्त है, तसव्वुरात सलासा उसके लिए शर्त है। और इमाम राज़ी ये कहते हैं कि तस्दीक जो नाम है वो हुक्म और तसव्वुरात सलासा के मजमूए का, हुक्म और तसव्वुरात सलासा के मजमूए। आगे बस मैंने शायद उल्टा बता दिया था इसको कि हुक्मा के नज़दीक तसव्वुरात सलासा का मजमूआ ये तस्दीक कहलाता है। ऐसा नहीं, हुक्मा के नज़दीक सिर्फ हुक्म जो है वो तस्दीक, सिर्फ हुक्म तस्दीक है, अलबत्ता तसव्वुरात सलासा उसके लिए शर्त है। इमाम राज़ी के नज़दीक सबका मजमूआ जो है वो तस्दीक, सबका मजमूआ वो तस्दीक। आगे बात सुनिए। वल इमाम राज़ी, और इमाम राज़ी फरमाते हैं कि हुक्म ये तस्दीक नाम है हुक्म और अतराफ के तसव्वुरात के मजमूए का। अतराफ से मुराद है महकूम अलैह और महकूम बिही, महकूम अलैह और महकूम बिही के तसव्वुरात के मजमूए का। फ़इज़ा क़ुल्ता, जब आप कहें ज़ैदुन क़ाइमुन व अज़अनता बिक़ियामि ज़ैदिन, और आप यकीन कर लें, अज़अनता यकीन कर लें, अज़अना युज़इनु इज़आनन बाबी इफ़आल से ये मुखातब का सिगा है, व अज़अनता और आप यकीन कर लें बिक़ियामि ज़ैदिन, ज़ैद के क़याम का, तहसुलु लका उलूमुन सलासतुन, तो आपको तीन उलूम हासिल होंगे, तो आपको तीन उलूम हासिल होंगे। उनमें से एक ज़ैद का इल्म है, मैंने बताया, समझ गए। वसानिहिमा इदराक माना काइम, और दूसरे काइम के माना का इदराक, काइम के माना का इल्म है। वसालिसुहा इल्मुल माना राबित, और तीसरे उस राबित के माना का इल्म है, उस राबित के जोड़ने वाला, राबित माना जोड़ने वाला, निस्बत जिसको हम कह रहे हैं, उस राबित के माना का इल्म है जिसको ताबीर किया जाता है फारसी में हस्त से ईजाब में, और नेस्त से सल्ब में, नेस्त से सल्ब में, और है और नहीं से हिंदी में, इसमें हिंदी में, हमारी ज़बान में। वसालिसुहा, और तीसरा उस राबित के माना का इल्म है जिसको ताबीर किया जाता है फारसी में हस्त से ईजाब की सूरत में, और नेस्त से सल्ब की सूरत में, और है और नहीं से हिंदी में। वयुक़ालु लिहाज़ल माना अल-हुक्मु तारतन, इस माना को कभी हुक्म भी कह देते हैं, और कहा जाता है इस माना को कभी हुक्म, वनिस्बतुल हुक्मिय्यत उख़रा, और कभी निस्बत हुक्मिय्या, और कभी निस्बत हुक्मिय्या। फ़इज़ा अत्क़नता, जब आपको यकीन हो गया, आपको महफूज हो गई वो चीज़ जो हमने आपको सिखलाई, अत्क़न यत्क़िनु इत्क़ान, इसके माना आते हैं दिल के अंदर किसी चीज़ का बैठ जाना। फ़इज़ा अत्क़नता मा अल्लमनाका, जब आपने खूब अच्छी तरह समझ लिया उस चीज़ को जो हमने आपको बताया,
फ़अलम, तो अब जान लो अन अल-हकीमा के हुक्मा का ख्याल ये है, अन अल-हकीमा यज़अम, हुक्मा का ख्याल ये है कि तस्दीक नहीं है मगर माने राबित का इदराक, मगर माने राबित का इदराक। वल इमाम यज़अम, और इमाम राज़ी का ख्याल ये है कि तस्दीक इदराकाते सलासा का मजमुआ है, तस्दीक इदराकाते सलासा का मजमुआ, यानी महकूम अलैह, महकूम बिही और निस्बते हुक्मिया, इनका जो मजमुआ है उसका नाम क्या है? तस्दीक है। वल इमाम यज़अम, और इमाम राज़ी का ख्याल ये है कि तस्दीक इदराकाते सलासा का मजमुआ है, यानी आनी मुराद लेता हूँ मैं, आनी मुराद लेता हूँ मैं, महकूम अलैह का तसव्वुर, महकूम बिही का तसव्वुर और निस्बते हुक्मिया का इदराक, अल मुसम्मा बिल हुक्मी, जिसका नाम हुक्म रखा जाता है, जिसका नाम हुक्म रखा जाए। तो खुलासा समझ में आया? इस इबारत में मुसन्निफ ने असलन जो बयान किया वो क्या बयान किया है? तसव्वुर, तस्दीक के सिलसिले में हुक्मा का और इमाम राज़ी का इख्तिलाफ, हुक्मा का और इमाम राज़ी का इख्तिलाफ जिक्र किया है। इख्तिलाफ क्या है उसको समझने से पहले ये समझें कि ज़ैदुन क़ाइमुन जब हम बोलते हैं, ज़ैदुन क़ाइमुन जब हम बोलते हैं तो कुछ चीज़ें हमें इसमें हासिल होती हैं। उनमें से एक है ज़ैद का इल्म, दूसरे है क़ाइम के माना का इल्म, तीसरा है उस निस्बत का इल्म, उस निस्बत का इल्म या राबते का इल्म जिसको हस्त से और नेस्त से या है और नहीं से ताबीर करते हैं। तो ये तीन चीज़ों का इल्म हमें हासिल हुआ, ठीक है। ये जो राबित होता है इसी को कभी निस्बत हुक्मिया भी कह देते हैं और इसी को हुक्म भी कह दिया जाता है। अब इसको समझें कि तस्दीक के सिलसिले में इख्तिलाफ क्या है इमाम राज़ी और हुक्मा का। हुक्मा ये कहते हैं कि तस्दीक नाम है उस हुक्म का जो तसव्वुरात सलासा से मिली हुई, तस्दीक नाम है उस हुक्म का जो तसव्वुरात सलासा से मिली हुई हो, यानी हुक्मा ये कहते हैं कि तस्दीक मुफरद है, तस्दीक क्या है? मुफरद है, मुरक्कब नहीं है। तसव्वुरात सलासा उसके लिए शर्त है, तसव्वुरात सलासा उसके लिए शर्त है। इमाम राज़ी ये कहते हैं कि नहीं, तस्दीक मुफरद नहीं है बल्कि मुरक्कब, मुफरद नहीं है बल्कि क्या है? मुरक्कब है, यानी तसव्वुरात सलासा जो है महकूम अलैह, महकूम बिही, निस्बत हुक्मिया, इनके मजमूए का नाम तस्दीक, इनके मजमूए का नाम तस्दीक। आगे बात समझ में? तो ये सब मुसन्निफ ने बयान किया और इसके ज़िम्मे में तस्दीक की तारीफ भी कर दी, इसके ज़िम्मे में तस्दीक की तारीफ। तो इमाम राज़ी के नज़दीक तस्दीक नाम है तसव्वुरात सलासा के मजमूए का, और हुक्मा के नज़दीक तस्दीक नाम है सिर्फ हुक्म का, सिर्फ हुक्म का, और तसव्वुरात सलासा उसके लिए शर्त, तसव्वुरात सलासा शर्त। तर्जुमा देखने की मतलब और अम्मा तस्दीक, बहरहाल तस्दीक वो हुक्मा के कौल के मुताबिक नाम है उस हुक्म का जो मिला हुआ हो तसव्वुरात के साथ। बस तसव्वुरात सलासा शर्त है तस्दीक के वजूद के लिए, और इसी वजह से नहीं पाई जाती है तस्दीक बगैर तसव्वुर के। और इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तस्दीक नाम है हुक्म और तसव्वुरात सलासा, हुक्म और अतराफ के तसव्वुरात के मजमूए का। अतराफ से मुराद है महकूम अलैह और महकूम बिही, मुस्नद और मुस्नद इलैह, मुस्नद और मुस्नद इलैह। फ़इज़ा क़ुल्ता, जब आप कहें ज़ैदुन क़ाइमुन और आपको यकीन हो जाए ज़ैद के क़ियाम का, तो आपको तीन उलूम हासिल होंगे। उनमें से एक ज़ैद का इल्म है और दूसरे क़ाइम के माना का इदराक, इदराक के माना भी है इल्म, इदराक के माना है इल्म। तो चाहे इदराक तर्जुमा कर लें चाहे इल्म तर्जुमा कर लें, दोनों सही है। वसानीहिमा, और दूसरे क़ाइम के माना का इल्म, और तीसरे उस राबित के माना का इल्म, जिसको फारसी में ताबीर किया जाता है हस्त से ईजाद की सूरत में और नेस्त से सल्ब की सूरत में, और है और नहीं से हिंदी में, यानी ईजाद की सूरत में है और सल्ब की सूरत में नहीं। वही क़ालु बिहादल माना अल हुक्म तारतन, और इस माना को कभी कहा जाता है हुक्म और कभी कहा जाता है निस्बते हुक्मिया। फ़इज़ा अतक़नत मा अल्लमनाका, जब आपने महफूज कर लिया वो जो हमने आपको सिखलाया, जो बतलाया, तो जान लो कि हुक्मा ख्याल करते हैं कि तस्दीक नहीं है मगर माने राबिती का इदराक, माने राबिती का इल्म। और इमाम राज़ी ख्याल करते हैं कि तस्दीक इदराकात सलासा का मजमुआ है। मुराद लेता हूँ मैं महकूम अलैह का तसव्वुर, महकूम बिही का तसव्वुर
اور نسبت حکمیہ کا علم المسمى بالحکم جس کو حکم کہا جاتا ہے، جس کو سمجھ میں آ گیا سبق؟ آگے سمجھ میں یاد ہو جائے گا؟ چلیے بہتر ہے، بند کر دو اس کو، بس یاد ہی